Hello friends, welcome to my channel Science Unearthed. Please like, share and subscribe to my channel. Today's topic is Life Processes Part 5. This chapter is very big, so it is divided into so many parts. In previous videos, you have seen and you have learned about nutrition, digestion, assimilation, and what is respiration and the types of respirations. So all these things have been discussed in the previous videos. And the link of these previous videos is given in the description box. So you can watch those videos also. Now let us start our topic. Today's topic is life processes part 5. So in this part, we will discuss the respiration in plants. As in animals, the plants also respire. They also perform the process of respiration. एंड व्हाट इज द एम ऑफ रेस्पिरेशन? ये रेस्पिरेशन होता क्यों है, इससे क्या बेनिफिट है? तो ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि हमें एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है. विदाउट एनर्जी वी कांट डू एनीथिंग इन आवर लाइफ. Similarly, plants also require energy for their daily activities. Now you will say that plants do not move, but there is some special type of movement in plants, and there are some other activities also. So plants also perform certain activities, and for those activities they require energy. अब ये जो plants हैं, इनको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. और मेन एम क्या है कि जो फूड हमने लिया, न्यूट्रिशन, वो डाइजेस्ट हुआ, एंड आफ्टर डाइजेशन इट इज एसिमिलेटेड इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. नाउ दिस एसिमिलेटेड फूड undergoes oxidation. And how it takes place? Oxygen enters in our body, and in the presence of oxygen there is oxidation. So the result of the oxidation is the release of energy. ये क्लियर हो गया आपको? जो फूड हम लेते हैं उसका डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद उसका एसिमिलेशन हुआ, एसिमिलेटेड फूड, उसका ऑक्सीडेशन होना है. ऑक्सीडेशन किस लिए होना है? क्योंकि ऑक्सीडेशन से ही एनर्जी रिलीज होती है, और वो एनर्जी काम आती है हमारी एक्टिविटीज के लिए, हमारी बॉडी के लिए. तो उसका जो ऑक्सीडेशन है, वो हम जो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, वो अंदर जाती है, और वो डिफरेंट पार्ट्स जो बॉडी के हैं उनको, उनमें जो एसिमिलेटेड फूड है उसका ऑक्सीडेशन करती है. और फिर ऑक्सीडेशन का रिजल्ट ये है कि उससे एनर्जी रिलीज हुई, और वो एनर्जी हमने यूटिलाइज करी अपनी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटीज है उनके लिए. Similarly, plants also perform certain activities. वो भी उनकी बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं. ग्रोथ है, मूवमेंट, एक ही जगह पे वो मूवमेंट भी होता है उनका, ट्रांसपिरेशन है, बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए प्लांट्स को भी एनर्जी चाहिए, और उनको भी एनर्जी फूड के ऑक्सीडेशन से ही मिलती है. तो उनको भी रेस्पिरेशन की रिक्वायरमेंट है. जब रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन मीन्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड and the formation of CO2. That's all. This whole process is called as respiration. So plants also need energy. So they also need respiration. So how it happens in plants? As we know, in the case of animals, energy is produced during the process of respiration. Animals use this energy for their activities. Similarly, plants also require energy, and they get this energy by the process of respiration. Just like animals, plants also use oxygen of the atmosphere for respiration and release carbon dioxide gas. अब जैसे
एक एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है कि ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं और वो ऑक्सीजन जाती है फूड एसिमिलेटेड फूड के पास, वहां पे उसका ऑक्सीडेशन करती है और रिजल्ट ऑक्सीडेशन का ये है कि उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है बिकॉज दैट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, सो इट इज रिलीज्ड, इट इज गिवन आउट ऑफ द बॉडी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। सिमिलरली प्लांट्स डू, they respire, and how they respire, they inhale, they take oxygen from the atmosphere, and inside their body the respiration process is done, means the oxidation of food is done, and the resultant CO2 is given out in the same way. So इसमें भी plants में ऑक्सीजन अंदर ली जाती है और CO2 बाहर निकाली जाती है। अब ये तो इतना तो जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम है एनिमल्स और प्लांट्स में, ऑक्सीजन अंदर लेना और CO2 बाहर निकालना। तो ये जो दो गैसेस हैं ना, ऑक्सीजन और CO2, क्योंकि ये रेस्पिरेशन में यूज होती हैं, सो दे आर कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी गैसेस। इनको रेस्पिरेटरी गैसेस का नाम दिया गया है और ये दोनों ही केसेस में एनिमल्स और प्लांट्स में ये इन्हीं दो गैसेस का एक्सचेंज होता है। नाउ we will discuss certain points regarding the difference between the respiration in animals and respiration in plants. So as you know that in animals the respiration is performed by a single unit in body. अब हमारे अंदर जैसे रेस्पिरेशन होता है तो उसके लिए एक रेस्पिरेटरी ट्रैक है, मींस एक अलग यूनिट है, सेपरेट यूनिट, और उसमें ये सब चीजें आती हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें से ऑक्सीजन अंदर जाती है और वो उसका बाइफरकेशन होता है और वो जो ट्यूब्स हैं वो जाती हैं लंग्स के अंदर और लंग्स की वॉल से फिर ये जो ऑक्सीजन है ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर हो जाती है। तो एक मतलब परफेक्ट एक यूनिट है हमारी बॉडी के अंदर जिसके अंदर ये रेस्पिरेशन होता है। बट इन केस ऑफ प्लांट्स all the parts of the plant body perform respiration separately। जितने भी उसके प्लांट बॉडी के पार्ट्स हैं जैसे रूट है, स्टेम है, लीव्स है, तो ये सब अलग अलग रेस्पिरेशन करते हैं। उसमें रूट में रेस्पिरेशन अलग हो रहा होगा और जो स्टेम है उसके अंदर रेस्पिरेशन अलग हो रहा है और लीव्स के अंदर रेस्पिरेशन अलग हो रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन these two types of respiration. Now, respiratory gases are transported over long distances inside the body through blood. अब ह्यूमन बींग्स में मैंने बताया कि जो ऑक्सीजन एंटर हुई लंग्स के अंदर, दैट ऑक्सीजन इज गिवन टू द ब्लड। जो ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर वो ऑक्सीजन पहुंच जाती है और वो ऑक्सीजन पूरी बॉडी में सर्कुलेट होती है, ब्लड में डिजॉल्व्ड कंडीशन में सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई ऑक्सीजन। तो इस तरह से जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही लंबे लॉन्ग डिस्टेंस पे होता रहता है एनिमल्स के अंदर और इसी तरह से जितने भी ऑर्गन हैं उनसे CO2 कलेक्ट होके और इतना लंबा चक्कर काट के तब फिर वो वापस आएगी लंग्स के अंदर और फिर वो वापस निकाली जाएगी। तो इस तरह से जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं ये एनिमल्स के अंदर they have to cover a very long distance inside the body, but in case of plants there is a little transport of respiratory gases। बहुत
छोटा सा ट्रांसपोर्टेशन होता है, क्योंकि हर पार्ट में अलग अलग हो रहा है रेस्पिरेशन। तो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ऑक्सीजन को पहुंचाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हर पार्ट रेस्पायर कर रहा है, हर पार्ट में रेस्पिरेशन हो रहा है। तो जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं उनका ट्रांसपोर्ट एक बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस में होता है। नाउ इन केस ऑफ एनिमल्स, रेस्पिरेशन अकर्स एट फास्टर रेट। ये बिल्कुल क्लियर है। अब जो एनिमल्स हैं या ह्यूमन बींग्स, उनके अंदर रेस्पिरेशन बहुत फास्ट है। उसमें पिछले वीडियोस में मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि जो इनहेलेशन है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं और CO2 बाहर निकालते हैं। तो एक ये जो है काम, ऑक्सीजन अंदर लेने का और CO2 बाहर निकालने का, इसको आप अगर अपनी बॉडी के अंदर भी देखें कि कितना एक शॉर्ट टाइम है, ये सेकंड्स भी नहीं है, 1-2 सेकंड्स के अंदर ये काम हो जाता है। और उसी के बीच में अंदर ऑक्सीडेशन भी कंप्लीट हो जाता है, जिसके की रिजल्टेंट है CO2। उसी से तो निकलती है CO2। तो जो ये हैं एनिमल्स, उनके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस बहुत फास्ट होता है, जबकि जो प्लांट्स हैं उनके अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस स्लो है। तो ये थोड़े से डिफरेंस हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन में। नाउ respiration in plants. So we will discuss it in detail. Uh, as I have told you that all the parts of the plants, they perform respiration separately or individually. So all these parts they are doing this respiration. So first we will discuss the case of roots. What happens in roots? Roots के अंदर क्या होता है कि जो सॉइल पार्टिकल्स के अंदर जो ऑक्सीजन है, सॉइल पार्टिकल्स, जिस सॉइल के अंदर प्लांट लगा हुआ है, तो वो जो सॉइल है उसके बीच में गैप्स भी होते हैं बहुत छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स के बीच में, और उसमें ऑक्सीजन होती है, बीच में एयर प्रेजेंट है। तो ये जो ऑक्सीजन है ये रूट्स ले लेती हैं अपने अंदर, और ये डिफ्यूजन का जो प्रोसेस है उससे वो इस ऑक्सीजन को ले लेती हैं सॉइल में से। नाउ रूट्स हैव सम एक्सटेंशंस कॉल्ड रूट हेयर्स। तो उसके अंदर रूट्स के ऊपर एक, अगर किसी भी आप रूट को निकाल के देखें तो उस मेन जो रूट है उसके ऊपर छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। दीज आर कॉल्ड एज रूट हेयर्स। सो इनका क्या फंक्शन है, वैसे ही मैं आपको बता रही हूँ, इसका इससे कोई कंसर्न नहीं है। ये जो रूट हेयर्स हैं ये रूट का एरिया इंक्रीज करते हैं। मतलब कोई चीज अगर एब्सॉर्ब हो रही है तो बड़ा एरिया है तो वो ज्यादा एब्सॉर्ब होगी, ये फायदा होता है। तो इसीलिए रूट हेयर्स होते हैं। तो ये रूट हेयर्स जो हैं ये कांटेक्ट में रहते हैं ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन कहाँ है? इन बिटवीन द गैप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के अंदर जो छोटे छोटे गैप्स हैं उनमें एयर भरी है, और उससे ऑक्सीजन कौन लेता है? रूट हेयर्स ले लेते हैं। सो दे टेक ऑक्सीजन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इन टर्न carbon dioxide is produced in roots as a result of this respiration. So that carbon dioxide moves out through the same root hairs by the process of diffusion. जैसे ऑक्सीजन की एंट्री होती है अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस से, और कौन करता है एंट्री? रूट हेयर्स। इसी तरह जो CO2 बना उस पार्ट के अंदर, CO2 कैसे बना? एज ए रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन or as a result of respiration you can say. So that CO2 also comes out by the same process of diffusion. वो उससे बाहर आ जाती है। Then if the root of a plant remains waterlogged for a long time, it dies. The reason behind is too much water expels oxygen from the soil. अब एक चीज आपने देखी होगी कि जो
पॉटेड प्लांट्स हैं जिनको हम पॉट्स के अंदर लगाते हैं, जिनको हम हिंदी में गमले कहते हैं, पॉट्स। तो उसका अगर आप बेस देखें, बॉटम, उसमें एक होल जरूर होता है, छोटा सा, सेंटर में एक होल कर दिया जाता है। वो होल जो है उसका रीजन ये होता है कि जो एक्स्ट्रा वाटर है, जितना वाटर रिक्वायर्ड है, वो तो वो जो सॉइल है वो एब्सॉर्ब कर लेगी, एंड द एक्स्ट्रा वाटर कम्स आउट थ्रू दैट होल। तो इसको निकाल क्यों दिया जाता है एक्स्ट्रा वाटर को? उसका रीजन यही है कि अगर वो अंदर भरा रहेगा तो अभी जो मैंने बताया कि जो सॉइल है उसके गैप्स के अंदर एयर होती है, और उस एयर से ऑक्सीजन लेते हैं प्लांट्स, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन लेते हैं। अब वो जो गैप्स हैं अगर उनमें पानी भरा हुआ होगा, देन देयर विल बी नो एयर and there will be no oxygen also. So how they can get this oxygen for their respiration? तो उनको respiration ही जब नहीं होगा तो वो खत्म हो जाएंगे plants। तो यही reason है कि जो root of a plant should not be waterlogged for a long time. If it happens then it dies। तो ये चीज है इसमें। और क्या है करता है ये कि जो वाटर है, टू मच वाटर दैट एक्सपेल्स ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल, वो उसमें से निकाल देता है। जब एक चीज कहीं से हटेगी और स्पेस बनेगा, तभी तो दूसरी चीज वहां पे एडजस्ट होगी। तो जब पानी इतना सारा हम भर देंगे तो वो पानी अपने सेटल होने के लिए वहां पे स्पेस ढूंढेगा, और वहां की ऑक्सीजन एयर को सबको बाहर निकाल देगा, और वहां वाटर ही वाटर होगा। So this is the reason how these plants, they are unable to respire and they ultimately die. So the roots of the plants should not be waterlogged for a very long time. Now other part of the plants is stem. Stem also performs respiration. This is the part of the plant body, so it will have to respire, so it performs respiration. The stems of plants have very small openings called stomata on their surfaces. In some coming videos, I will explain the whole structure of stomata and its working also. ये जब इसका जो टाइम आएगा, देन आई विल डिस्कस ऑल अबाउट स्टोमेटा, कि ये क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है और इसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो ये आगे डिस्कस किया जाएगा डिटेल में। बट फॉर दिस पर्पस ऑफ रेस्पिरेशन, you have to understand that these are the small openings or the pores. They are found on the surface of the stomata, sorry, on the surface of stem. तो ये जो स्टोमेटा है ये बहुत छोटी ओपनिंग्स होती हैं और ये सरफेस पे होती हैं उसके स्टेम के। The oxygen from air diffuses through stomata and reaches to all the cells of the plants for respiration. यहाँ से एंट्री होती है ऑक्सीजन की स्टोमेटा के थ्रू, और वो ऑक्सीजन पहुंचती है अंदर जितने भी सेल्स हैं प्लांट्स के, और उनके अंदर रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन दैट कम्स आउट थ्रू द सेम स्टोमेटा। अब इन्हीं स्टोमेटा से CO2 बाहर आ जाती है। सेम प्रोसेस, ये रेस्पिरेटरी गैसेस का आना जाना होगा ही। और इसमें पैसेज क्या है, एंट्री पॉइंट? एंट्री पॉइंट इज स्टोमेटा। व्हाट आर स्टोमेटास? Stomatas are the small openings found on the surface of the stem. उसके बाहरी सरफेस पे होते हैं ये। Now the carbon dioxide produced that also comes out, but there is some different case in woody stems. ये आपने कुछ ऐसे ट्रीज देखे होंगे जो बहुत पुराने, उनमें ग्रीन स्टेम नहीं होता। ग्रीन स्टेम की जगह उसमें ब्राउन सा स्टेम होता है, जैसे कि वो उसको बार्क कहते हैं। बार्क उसके ऊपर आ जाती है और बहुत ही हार्ड होती है ये बार्क उसके सरफेस पे। तो ये जैसे पुराने जो ट्रीज हैं
या प्लांट्स, उनमें बार्क होती है, और बार्क में ये स्टोमेटाज नहीं होते, बल्कि एक दूसरी तरह का एक ओपनिंग होता है जिसको लेंटिसेल्स कहते हैं। लेंटिसेल्स, वो भी एक सिंपल ओपनिंग है जस्ट लाइक स्टोमेटा, बट द नेम इज डिफरेंट, दैट इज लेंटिसेल्स, और उसका स्ट्रक्चर भी डिफरेंस होगा। तो ये लेंटिसेल्स होते हैं बार्क के ऊपर। Now the exchange of respiratory gases takes place through these lenticels. ये इन lenticels के थ्रू रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है। तो ये हो गया जो बार्क वाले वुडी स्टेम्स होते हैं उनके अंदर ये रेस्पिरेटरी गैसेस का एक्सचेंज होता है थ्रू lenticels. Now we will discuss about leaves. लीव्स में क्या होता है? Stomatas are again present on the surface of the leaves. ये leaves की surface पे stomatas होते हैं. Oxygen from air diffuses through these stomata and carbon dioxide comes out. Similar process, वही stomata और जो स्टेम के ऊपर थे वही लीव्स में है, और ऑक्सीजन अंदर गई और रेस्पिरेशन हुआ, एज ए रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई, दैट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड comes out through the same stomatas. In plants, photosynthesis occurs during the daytime. No photosynthesis occurs at night. On the other hand, respiration in plants occurs in daytime as well as in night. As you have studied this photosynthesis in my earlier videos, so this was discussed in detail. पूरा photosynthesis मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ है, और वो आपने देखा कि सिर्फ वो मॉर्निंग या डे टाइम में होता है जब तक सनलाइट होती है, क्योंकि उसका एक रिक्वायरमेंट, एक नेसेसरी जो रॉ मटेरियल है वो सनलाइट है, तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही होगा फोटोसिंथेसिस। रात को या नाइट आवर्स में ये पॉसिबल नहीं होता फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो रेस्पिरेशन है प्लांट्स के अंदर वो डे टाइम में भी होता है और नाइट में भी होता है। So this is the difference between photosynthesis and respiration. Respiration occurs throughout the day and night, but photosynthesis occurs only during the day time when sunlight is present there. When photosynthesis occurs, oxygen is produced. Plants use this oxygen for their respiration, and unused oxygen diffuses out into air. अब ये मॉर्निंग में या डे टाइम में जब फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उसमें रॉ मटेरियल में CO2 ली जाती है, CO2 enters the body of the plant and oxygen is given out during the photosynthesis. So this given oxygen, the part of it is consumed by the plants for their daily activities. इसका एक पार्ट जो प्लांट्स हैं वो यूज कर लेते हैं अपनी एक्टिविटीज के लिए, एंड रेस्ट ऑफ द अनयूज्ड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर। तो ये काम होता है, कुछ पार्ट रेस्पिरेशन के लिए यूज हो गया ऑक्सीजन का, एंड द रेस्ट ऑफ द अनयूज्ड ऑक्सीजन is given out into the air. And during the daytime, carbon dioxide produced by respiration is all used in photosynthesis. अब दिन के टाइम में या डे टाइम में जो रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें ऑक्सीजन की तो एंट्री हो गई प्लांट बॉडी में, और रेस्पिरेशन में आपको पता है कि CO2 बनता है। वो जो CO2 जो बाहर आया एटमॉस्फेयर में वो काम आ जाता है फोटोसिंथेसिस के लिए। सेम प्लांट उसको ले लेता है अपने अंदर CO2 को, एंड दैट CO2 इज यूटिलाइज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो CO2 कंज्यूम हो गया, और जो अनयूज्ड होगा वो तो जाएगा ही एटमॉस्फेयर में, तो उसमें ये यूज हो जाता है CO2। Hence the net gas exchange during the daytime is oxygen diffuse out and CO2 diffuses in. अब डे टाइम में अगर हम एक्सचेंज देखें रेस्पिरेटरी गैसेस का, तो नेट एक्सचेंज क्या हुआ? ऑक्सीजन अंदर गई फॉर रेस्पिरेशन,
और CO2 बाहर आई, ये नेट हुआ। नाउ डिस्कस द नाइट आवर्स। ड्यूरिंग नाइट no photosynthesis occurs, hence no oxygen is produced. Uh, during night no photosynthesis occurs, hence no carbon dioxide, uh, oxygen is produced. So in case of photosynthesis, CO2 is taken in. So when photosynthesis is not there, then no oxygen is produced during the night. Oxygen from air is taken by the plants for respiration. अब जो रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस है वो तो डे नाइट दोनों में चल रहा है, तो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो ले ली प्लांट ने अपने रेस्पिरेशन के लिए, और फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है नाइट आवर्स में, तो उसमें से ऑक्सीजन बाहर नहीं आई, और जो ऑक्सीजन थी एयर के अंदर वो ले ली गई फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। तो इसमें एक चीज आपने सुनी होगी कि ये कि कई बार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि जो ड्यूरिंग ये जो नाइट आवर्स हैं, इसमें आपको किसी ट्री के नीचे या प्लांट्स जहाँ पे बहुत सारे हों वहां पे बहुत ज्यादा टाइम स्टे नहीं करना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि वहां का जो एटमॉस्फेयर होगा, सपोज देयर इज अ पार्क और रात का टाइम है, तो वहां पे आपके लिए ज्यादा टाइम बिताना दैट इज हार्मफुल। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? बिकॉज एट दैट टाइम नो photosynthesis was done, so no oxygen is produced. हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए एयर के अंदर, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। अब रात को फोटोसिंथेसिस हो नहीं रहा है, कोई ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं हुई, इट मींस जहां से आती थी वो तो आई नहीं, और बल्कि जो उसके अंदर ऑक्सीजन है एयर के अंदर, दैट इज टेकन बाय प्लांट्स एंड ट्रीज फॉर देयर रेस्पिरेशन पर्पस। सो ऑल द ऑक्सीजन ऑफ द एटमॉस्फेयर is absent, almost all, because this process is going on. So it is harmful to stay near trees or just beneath the trees for a long time at night. हाँ, डे टाइम में वहां पे बहुत ऑक्सीजन होती है तो वो अच्छा रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होती है रेस्पिरेशन, वो डिफ्यूज होती है बाहर एयर के अंदर, और रात को आपको उस एटमॉस्फेयर में CO2 ज्यादा मिलेगी और ऑक्सीजन ऑलमोस्ट एब्सेंट। तो ये एक हार्मफुल इफेक्ट होता है। दैट्स व्हाई वी शुड नॉट स्टे at night in parks and other places where there are a large number of trees. So the net exchange in the plants at night is oxygen diffuses in and CO2 diffuses out. So this is the net exchange of these respiratory gases. So this is all for today. Now in some coming videos, we will discuss the respiration in human beings and the respiration in certain animals like amoeba, paramecium and earthworm, etc. So we will discuss all these things in detail. Now please like, share and subscribe to my videos, so that if you subscribe my videos, then you will get all the coming uh, videos in your phone. So all the 3 days, Monday, Wednesday and Friday, I am giving 3 videos per week. So you can watch all these 3 videos, and these videos, they come at 6 p.m. sharp in the evening. So please subscribe to my channel. Thank you very much.